Hi friends, after completing first two sections of chapter number 10, we are now moving on to third chapter, third section. As we knew about this chapter, it is regarding mechanical properties of fluids, in which we study properties related to fluids. In first section we took the fluid statics, यानी properties of stationary fluids, in which we talked about pressure, density of the fluid. Then we took Pascal's law. Then we took concept of buoyancy, buoyant force, and then principle of flotation. This all we studied in fluid statics. These were the properties connected to stationary fluids. In the second section we saw about fluid mechanics, in which fluids started moving. Now उसके अंदर मूविंग फ्लूइड्स के बारे में बात की, तब हमने कॉन्सेप्ट लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो का, जिसमें लिया था हमने स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बराबर है. फिर बाद में हम लोग चले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो समझे, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखा. आफ्टर कंप्लीटिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी वेंट ओवर टू बर्नौलीज इक्वेशन, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन देखा हमने. फिर बाद में भी टुक इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें वेंचुरीमीटर था, pressure due to height of liquid and gauge pressure का formula फिर से obtain किया using Bernoulli's equation. Then we saw how aeroplane takes off and lands, यानी aerofoil को पढ़ा हमने. फिर हमने देखा swing bowling के बारे में, बराबर है. और हमने एक और छोटा सा एक लॉ भी obtain किया, that is Torsell's law, right? So that was second part of the chapter regarding fluid mechanics and moving fluids. Now we study about the third section, that is viscosity. अब viscosity को introduce करूँ तो what it is? तो we know that we have defined friction in chapter number 5. Friction यानी क्या था? Two solid surfaces in contact with each other when they are moving relative to each other, यानी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव कर रहा होता, when they are moving relative to each other. फिर से एक बार, two solid surfaces they should be in contact and moving relative to each other. At that time an opposition arises, a property of opposition arises between the two layers which opposes their relative motion. A property which opposes the relative motion that arises, and that is called friction. Solid surface के लिए, liquid surface के लिए या fluids के लिए it is called viscosity. Same thing occurs in case of fluids also, and that's called viscosity. यानी solids में जिसे friction बोलते हैं, वही चीज fluids में viscosity के नाम पे है. Okay, चलो देखते हैं concept of viscosity what it is. तो suppose is a ground surface, and on this ground surface, let's suppose fluids, let's say the ground surface है. A fluid is moving on this. When the fluid moves on the ground, on the surface, then it moves in form of layers sliding one over the other. ये layer के form में fluids move करते हैं. Layers one over the other sliding. So this type of flow of the fluid, which is imagined by us, and we imagine that fluid is moving in form of layers sliding one over the other, and this type of layer type of flow is called laminar flow. This is called laminar flow. तो here liquid is processing laminar, the fluid is processing laminar flow. इसमें जो lowest layer है, it sticks to the ground. Lowest layer sticks to the ground and इससे उसकी speed 0 होती है. Lowest layer sticks to the ground, so its speed is 0. As we move away from the ground, the layer have their velocity increasing. As you move up and move away from the ground, the velocity of the layer goes on increasing, and the topmost layer will have maximum velocity. Topmost layer will have maximum velocity. यानी as you move away from the surface, the velocity increases. Okay. The lowest layer which is in contact with the ground surface, the layer which is in contact with the ground surface will have zero velocity because it is sticking to the ground surface due to adhesive forces. बराबर है. And फिर जैसे जैसे दूर जाओगे, speed बढ़ेगी. Okay. You can visualize this using a pack of cards. Put a pack of cards. Tap it. From the side, टैप करो उसको, यहाँ से टैप करो साइड से, तो देखो क्या देखने मिलता है. The uppermost card will move faster, उसके नीचे वाला slower and slower and slower, लास्ट वाला तो हिलेगा भी नहीं, वेलोसिटी बराबर है. अब चलो सपोज करते हैं यहाँ पे a layer at a distance x from the ground surface has a velocity v, इसकी velocity v है. तो layer above it, the next layer, consecutive layer above it will have a distance x plus delta x, and ये उसकी वेलोसिटी से थोड़ी ज्यादा होगी, v plus delta v. तो two successive layers will be moving at different velocities. In that the lower layer will be having less speed, the upper layer is having greater speed. अब situation क्या है? The upper layer moving with greater speed tries to pull the lower layer along with it. Upper layer moving with
greater speed tries to pull the lower layer along with it, but the lower layer moving comparatively slower pulls it back, pulls it back, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, इसे ऊपर वाले को फास्ट जा रहा है उसको अपनी तरफ खींचेगा थोड़ा, यानी कि दोनों के ऊपर वाला आगे खींच रहा है, नीचे वाला पीछे खींच रहा है, ऊपर वाला आगे पुल कर रहा है, नीचे वाला आगे पीछे पुल कर रहा है, मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में एक ऑपोजिशन राइज हुआ. सो वी फाइंड दैट देयर इज एन ऑपोजिंग फोर्स अराइजिंग बिटवीन द टू लेयर्स एंड दैट्स कॉल्ड वी, FV, viscous force. That's called viscous force denoted by FV. Viscous force arise हुआ, बराबर है. The force of opposition arising between the two layers, that is viscous force. Such a property of the fluid is called viscosity, and the fluid is now called viscous fluid. And अगर ऐसा viscous force ना arise हुए तो that becomes non-viscous fluid. That becomes non-viscous fluid. Okay. अब ये विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये विस्कस फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो F डिपेंड्स ऑन, एक तो दोनों के बीच में डिफरेंस इन वेलोसिटी कितना है, मोर द डिफरेंस इन वेलोसिटी मोर इज द ऑपोजिशन राइजिंग, लेस द डिफरेंस इन वेलोसिटी इज द डिफरेंस लेस ऑपोजिंग फोर्स राइजिंग, यानी कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जितना ज्यादा होगा, यानी कि डिफरेंस इन वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा दोनों के बीच में, मोर विद द विस्कस फोर्स राइजिंग. ओके. सेकेंडली इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू, क्योंकि डिस्टेंस जितना कम होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा. वी नो वेरी वेल, वी रब टू हैंड्स लाइक दिस एंड वी रब इट लाइक दिस, फ्रिक्शन का अमाउंट चेंज हो गया ना. तो वैसे यहाँ पे भी मोर द डिस्टेंस बिटवीन द टू, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स, जितना ज्यादा उतना फोर्स कम, जितना डिस्टेंस कम उतना फोर्स ज्यादा. सो इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू. एंड थर्डली इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस. माइंड वेल, हियर वी टेक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस. मोर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस more the viscosity, less the area of contact surface, less the viscosity. सिंपल सी बात है, पूरा हाथ रब करोगे तो ज्यादा हीट जनरेट होगी, पर 2 उंगलियां रब करोगे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस कम है तो कम फ्रिक्शन, कम हीट जनरेट होगा. ओके. सो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस जितना ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस कम उतना फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स कम. याद रखें, हियर ए इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉट द क्रॉस सेक्शन. चला, इट इज एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस नॉट द क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं लेना है, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में वो लेना है. ओके. कंबाइनिंग दिस थ्री व्हाट वी गेट इज FE इज प्रोपोर्शनल टू A into delta V by delta x. Okay. To remove the proportionality we put a constant. To remove the proportionality we put a constant, therefore FE can be written as eta A delta V by delta x. यहाँ पे eta यानी क्या है, eta is called coefficient of viscosity. It's called coefficient of viscosity. इसको हम लोग बाद में डिटेल में ले रहे हैं. फिलहाल ये फॉर्मूला आ गया, FE equal to eta A dV by dx, delta V by delta x. ये eta के बारे में. A तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस है. डेल्टा V by delta x की बात करें तो डेल्टा V by delta x is nothing but it is increase in velocity per unit distance. It is increase in velocity per unit distance. इसको बोलते हैं हम लोग velocity gradient. It's called velocity gradient. It is इसका definition increase in velocity per unit distance is called velocity gradient. इसका यूनिट क्या आएगा, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड अपॉन डिस्टेंस का मीटर, सो दैट बिकम सेकेंड इनवर्स. माइंड वेल इसको हर्ट्ज नहीं बोल सकते, फ्रीक्वेंसी के लिए सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज बोलते हैं, बाकी ऑर्डर एक सेकेंड इनवर्स ओनली. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस वन विल बी सेकेंड इनवर्स इज m0 L0 t minus 1. ओके. नाउ अगर वेरिएशन वेलोसिटी ज्यादा है तो फिर वी टेक दिस डेल्टा V by delta x tending to 0. Sorry, we take dV by dx instead of delta V by delta x. If variation is minute, then in that case we take delta V by dV by dx. तो इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं FV into FE equal to eta into A dV by dx. Okay, where dV is the change in velocity, dx is the distance between the two layers, successive layers. ये हो गया रिगार्डिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये तो विस्कस फोर्स है, ये डेल्टा V by delta x की बात हो गई. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, अब बचा ईटा. ईटा को डिटेल में लेते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. जस्ट गो थ्रू दिस. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो ऑन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये क्या चीज है, पहले उसका डेफिनेशन लेते हैं. तो वी नो दैट FE इक्वल टू ईटा A.
delta v by delta x. Okay, तो therefore eta can be defined as Fv upon a into delta v by delta x. ये उसको सब्जेक्ट का फॉर्मूला कर दिया. Now when a is equal to 1 unit and delta v by delta x यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट is 1 सेकेंड इनवर्स यानी 1 यूनिट बोल दे, तो ये दोनों 1 हो गए, तो eta equal to Fv and that's how we define it. The viscous force arising between two layers, successive layers of fluid, the viscous force arising between two successive layers of the fluid per unit area of contact per unit velocity gradient. फिर से एक बार, viscous force arising between two successive layers of the fluid per unit area of contact surface per unit velocity gradient is called coefficient of viscosity of that fluid. Okay, ये उसका डेफिनेशन हो गया. यानी फॉर्मूला पर से डेफिनेशन ज्यादा इजीली बन जाता है. फिर इसका यूनिट क्या आएगा? विस्कस फोर्स का न्यूटन, फोर्स है इसलिए, एरिया का मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट का सेकंड इनवर्स. तो दिस विल बी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ऐसा यूनिट हो गया ये, बराबर है. इसका सीजीएस यूनिट तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसको प्यार से ट्वाइस कहते हैं. इट इज कॉल्ड ट्वाइस. ये इसका सीजीएस यूनिट हो गया. दोनों के बीच का रिलेशन क्या? नहीं, पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हैं. चलो, डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी न्यूटन का, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ना, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t minus 2, सेकंड का t1 and मीटर स्क्वायर l2. सो दिस कम्स आउट टू बी m1 l minus 1 t minus 1. ओके, दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब रिलेशन देख रहे हो यहाँ पे दोनों का, तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूटन को अगर डाइन लिखे तो न्यूटन डाइन का रिलेशन 10⁵ का हुआ. सेकेंड तो सीजीएस ऐसे में दोनों सेम है, अपॉन मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, सॉरी 10⁻+2 का स्क्वायर. तो दिस विल कम आउट टू बी 10⁴, ऊपर 10⁵ है यानी 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी वी कैन से दैट देयरफॉर 1 न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर इज 10 ट्वाइस. ये रिलेशन हो गया ऐसा यूनिट यानी सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का. चलो फिर आगे चलते हैं. ईटा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, टाइप ऑफ फ्लूइड, एक तो टाइप ऑफ फ्लूइड पे एंड दूसरा टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड. 2 चीजों पे डिपेंड करता है, टाइप एंड टेम्परेचर 1 and 2. चलो देखते हैं डिपेंडेंस कैसा है. तो फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में दो टाइप, एक तो लिक्विड एंड दूसरा टाइप ऑफ फ्लूइड आता है गैस. लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड. अब लिक्विड में भी 2 टाइप, थिक लिक्विड on a thin liquid, gas as it is. अब we find that thick liquid को फ्लो होने में तकलीफ ज्यादा होगी. If you flow thick liquid like honey or castor oil, it will take more time to pass. यानी जल्दी रुक जाएगा. क्यों जल्दी रुकेगा? Because the viscosity between the two layers is more, viscous force is more. तो ज्यादा आगे नहीं जाएगा, viscous force ज्यादा मतलब ईटा भी ज्यादा है. तो for thick liquid ईटा is high, ईटा की वैल्यू हाई होती है. थिन लिक्विड कंपैरेटिवली फ्लोज इजियर मतलब बीच में विस्कस फोर्स कम है, मतलब ईटा की वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू लो होगी. गैस रेडिली फ्लोज तो कोई सवाल ही नहीं है, इसमें वेरी लो. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लूइड, थिक लिक्विड के केस में हाई, थिन लिक्विड के केस में लो और गैस के केस में वेरी लो. बराबर है. अब टेम्परेचर का रिलेशन देखो, ये टाइप ऑफ फ्लूइड के साथ रिलेशन हो गया. आप टेम्परेचर के साथ रिलेशन ले तो इन केस ऑफ लिक्विड ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर बढ़ेगा ईटा कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो थिक लिक्विड बिकम थिनर. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द थिक लिक्विड बिकम थिनर. लिक्विड थिन होगा तो फ्लो इजी होगा, इसका ईटा कम हो गया. तो टेम्परेचर बढ़ा ईटा कम हो गया. आपका एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस है कि विंटर में कोकोनट ऑयल सॉलिडिफाइज, फिर क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं, सॉलिडिफाई करते तो इजीली फ्लो नहीं हो रहा है, बराबर थिक हो गया है.
फिर उसको गर्म करते हैं तो इट इजीली फ्लोस। घी के बारे में भी ऐसे बोलते हैं, घी भी जम जाता है तो इट डज नॉट फ्लो इजियर, थिक होता है तब, पर उसको गर्म करो तो इट बिकम थिन एंड सो इट फ्लोज इजियर, तो उसका विस्कोसिटी कम हो गया। केस्टर ऑयल की बात करो तो समर में इट इज इन वेरी थिन फॉर्म, तो आराम से फ्लो होता है, पर विंटर में देखो तो केस्टर ऑयल थोड़ा थिक हो जाता है, इट डज नॉट फ्लो इजीली। ग्रीस के बारे में भी सेम वे। सो वी हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स showing that with the increase in temperature liquid becomes thinner and so flow becomes easier and so eta value decreases। तो टेम्परेचर बढ़ने का eta कम होता है, जबकि गैस के केस में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों ऐसा? क्योंकि गैस में विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, रैंडम मोशन इंक्रीज होगा तो फ्लो टफ हो जाएगा। क्यों? मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव करें, एक लाइन में तो जाएंगे नहीं, तो फ्लो कहां से आएगा? तो गैस के केस में व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रैंडम मोशन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस and so random motion molecules increases and so the flow becomes tough flow हो गया, मतलब क्या हुआ? viscosity बढ़ गई। तो with increase in temperature viscosity increases in case of gas। so viscosity depends on type and temperature of the substance। ये क्वेश्चन viscosity पे एक शॉर्ट नोट हो गया। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, they can be asked for 1 mark MCQ 1 line question as well as a 2 mark short note। okay, so that's question of viscosity, please go through it। Friends, in the previous topic we had taken the ground to be stationary and the fluid was moving over it। ground was stationary मतलब solid part was stationary, fluid was moving over it। अब थोड़ा उल्टा करते हैं, we make the fluid stationary and we let the solid substance move in it, तो फिर viscosity आएगा? Yes, definitely। when a body, solid body is moving in a stationary fluid, we find that viscosity acts there also। कोई लाइव एग्जांपल इसका? Yes, definitely। when you are diving in a swimming pool, in the swimming pool the fluid is stationary, water is stationary। आप उसके अंदर डाइव मारते हैं तो जब आप अंदर घुसेंगे तो आपके बॉडी के ऊपर एक कवर हो जाएगा लिक्विड का। एज यू मूव इन द बॉडी विल हैव अ थिन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर इट, वो थिन लेयर है एंड आप अंदर घुस रहे हैं तो यू विल फेस सम ऑपोजिशन, यू माइट हैव एक्सपीरियंस द ऑपोजिशन व्हेन यू एंटर इनटू वाटर एंड दैट ऑपोजिशन इज नथिंग बट फ्रिक्शन, अरे विस्कोसिटी। चलो देखते हैं यहाँ पे वो क्या चीज है। तो स्टोक्स लॉ इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। इन अ स्टेशनरी फ्लूइड वी आर मूविंग अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि व्हेन अ स्मॉल स्मूथ सॉलिड स्फीयर, रिमेंबर वेल देयर आर 4 S, स्मॉल स्मूथ सॉलिड एंड स्फीयर ऑफ रेडियस r, इस स्फीयर का रेडियस r है, moves with speed we in a fluid of viscosity, question of viscosity eta, then a viscous force act on it and that viscous force is given as Fe equal to 6 pi eta Rv। ये फॉर्मूला स्टेटमेंट के लॉ के अंदर है। कैसे आया? नो नीड टू गो इनटू डिटेल ऑफ इट, यू हैव टू डायरेक्टली एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? व्हेन अ स्मॉल स्मूथ सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस r moves with the speed v in a fluid of constant viscosity eta, then viscous force acting on it is given as 6 pi eta Rv। ओके, यहाँ पे 6 pi कांस्टेंट है, eta constant viscosity of the fluid, r radius of the sphere, v velocity of the sphere। ओके, this formula acts strictly on spherical object, it should be solid, hollow के लिए नहीं, स्मॉल भी होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं। ये रिस्ट्रिक्शंस है इस पर्टिकुलर लॉ के लिए। अब ये लॉ में बताते हैं विस्कस फोर्स लगे तो विस्कस फोर्स क्यों लगेगा। तो लेट्स सी, सपोज ये लेयर है, ये सरफेस है लिक्विड का। अब लिक्विड में हम लोग नॉर्मली लैमिनार फ्लो में हमने देखा हॉरिजॉन्टल लेयर्स देखे थे, पर व्हेन वी टेक अ स्टेशनरी फ्लूइड लेट्स कंसीडर द वर्टिकल लेयर्स। लैमिनार है और वर्टिकल लेयर्स अज्यूम करते हैं, ये वर्टिकल लेयर्स है किसके? लिक्विड स्टेशनरी फ्लूइड के। इसके अंदर कोई स्फीयर एंटर होता है, व्हेन स्फीयर गोज इनसाइड एंटर्स इनसाइड, जैसे स्फीयर एंटर होता है यहाँ पे, तब लिक्विड का एक लेयर, अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड एनवेलप्स द स्फीयर, थिन लेयर ऑफ लिक्विड एनवेलप्स द स्फीयर एंड मूव्स अलोंग विद द स्पीड ऑफ द स्फीयर, मूव्स अलोंग विद द स्पीड ऑफ द स्फीयर। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? हम जब पानी में हाथ डालते हैं तो हाथ गीला हो जाता है, द हैंड बिकम्स वेट,
What does that wetting of the hand mean? As you put hand in the water, a layer of water comes over the hand. It engulfs the hand. It envelopes the hand. A thin layer of water envelops the hand. बराबर है, यानी कि अपना हाथ गीला हो गया. You take a napkin or tissue paper, you wipe it, तो वो thin layer चला गया, hand is dry now. ऐसा तो नहीं कि आपने पानी में हाथ डाला, हाथ ने पानी सोक कर लिया, फिर ऊपर आके दबाया तो पानी टपक टपक गिर रहा है. Does it happen? नहीं. तो what happens is when you put hand in the water, the hand becomes wet, means a thin layer of water is formed over the surface of the hand. Thin layer is formed, enveloping on the surface of the hand. And फिर तुम हाथ यूं घुमाओगे तो लेयर भी साथ साथ भी जाएगा. ऐसा तो नहीं कि हाथ आगे चले जाए, लेयर पानी कहीं रह जाए. ऐसा तो होता नहीं, वो साथ साथ में चलता है ना. तो यहाँ पे भी as the sphere moves ahead, the layer sticking to the sphere will also continue to move with it. अब मान लो ये लेयर जा रहा है, सॉरी ये स्फीयर जा रहा है, उसके साथ वो लेयर भी, ये फ्लूइड का लेयर है. If the sphere is moving with speed v, then fluid का layer also moves with speed v. Now this layer of the fluid is moving with speed v along with the sphere, जबकि बाजू का लेयर स्टेशनरी है. बाजू का लेयर स्टेशनरी है, तो ये मूविंग स्फीयर, मूविंग लेयर एंड स्टेशनरी लेयर, दो फ्लूइड लेयर के बीच में ऑब्वियस एक फ्रिक्शन आ गया, विस्कोसिटी राइज हो गया. बराबर है. तो अ लेयर मूव्स विद द स्फीयर, मूविंग लेयर एंड स्टेशनरी लेयर ऑफ द फ्लूइड, दोनों के बीच में ड्यू टू रिलेटिव मोशन we find a viscosity arises, and that viscous force will be shown by Fv. That viscous force will show by Fv. This viscous force always opposes the motion. ये नीचे जा रहा है तो viscous force ऊपर लगेगा. Clear about this? And ये viscous force की वैल्यू कितनी? 6 pi eta Rv. 6 pi eta Rv. Now let's see what are the forces acting on a sphere when it enters the fluid. Fluid में enter होता है तो sphere पे कौन कौन से force लगते हैं? तो जब sphere बाहर है तो एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बोलेंगे उसको. एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg व्हेन इट इज आउटसाइड. तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्फीयर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्फीयर, एक तो वेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट फोर्स हो गया, गिवन एज Fg एंड इट इज गिवन एज mg. एंड ये कौन सा डायरेक्शन होता है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस वेट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू mg. फिर ये तो जब आउटसाइड है था, जब अंदर एंटर हुआ तो वेट फोर्स तो लगना ही लगना है, जिसके कारण वो नीचे आ रहा है. इसके अलावा एज सून एज द स्फीयर एंटर्स द फ्लूइड, फ्लूइड का एक बुओयंट फोर्स भी लगेगा. तो बुओयंट फोर्स एक्ट्स इन अपर डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन Fb. तो दूसरा फोर्स लगता है बुओयंट फोर्स. बायंट फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अपर डायरेक्शन, एंड दैट इज गिवन एज Fb. And इसका फॉर्मूला m0g, where m0 is the mass of the liquid displaced by the sphere. Mass of the liquid displaced by the sphere, m0 into g हुआ. तीसरा फोर्स विस्कस फोर्स आएगा जब वो अंदर है इनसाइड. तो एक फोर्स Fg हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स. दूसरा हो गया Fb, buoyant फोर्स. एंड तीसरा आएगा Fv, विस्कस फोर्स. एंड विस्कस फोर्स इज गिवन एज, विस्कस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट टू मोशन. यहां मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो अपर डायरेक्शन में, इन अपर डायरेक्शन. एंड कितना? F is equal to 6 pi eta Rv. This is the force. These are the forces acting on a sphere when it is moving in a fluid. तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने Fv बताया, यहाँ क्यों नहीं बताया? Because when the sphere enters the fluid, when the sphere just enters the fluid, at that time it strikes with the surface. Momentarily उसकी speed becomes 0 and starts traveling, तो उसकी speed increase होना शुरू होती है. तो जब बाहर से आके टकराता है फ्लूइड में, फ्लूइड के सरफेस को, तब मोमेंटली स्पीड बिकम 0 एंड देन इट पिक्स अप द स्पीड. यानी व्हेन इट जस्ट एंटर्स, एट दैट टाइम द इनिशियल स्पीड इज 0. इनिशियल स्पीड 0 है, स्पीड 0, तो विस्कस फोर्स 0. अगर मूव ही नहीं कर रहा हो तो फिर फोर्स क्यों लगेगा? विस्कस फोर्स. तो इनिशियली स्पीड इज 0, देयरफॉर नो विस्कस फोर्स व्हेन इट जस्ट एंटर्स. तो यहाँ पे दो ही फोर्स दिखेंगे, Fg एंड Fb. आउटसाइड में ओनली वन Fg, इन जस्ट एंटरिंग में Fg एंड Fb, और अंदर होगा जब ट्रैवल कर रहा होगा तो Fg, Fb एंड Fb तीन फोर्स देखने को मिलेंगे. यानी इन फोर्सेस के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? केस 1, व्हेन स्फीयर आउटसाइड द फ्लूइड, व्हेन स्फीयर इज आउटसाइड द फ्लूइड, एट दैट टाइम ओनली वेट फोर्स. बराबर है. सेकेंडली, व्हेन जस्ट एंटर्स द फ्लूइड, जस्ट एंटर्स फ्लूइड, इन दिस केस Fg एंड Fb दोनों आएंगे. इन दैट केस V is 0
इनिशियल स्पीड 0 है, देयरफॉर विस्कस फोर्स इज 0, उस केस में विस्कस फोर्स 0 हो जाएगा। तीसरा केस, व्हेन इनसाइड लिक्विड, व्हेन इनसाइड फ्लूइड, व्हेन इनसाइड फ्लूइड Fg वेट फोर्स, फिर Fb बुओयंट फोर्स, एंड अब स्पीड भी आ गई इसलिए Fv विस्कस फोर्स। ये तीन फोर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब हमें हर एक केस को अलग अलग पढ़ना है। हम लोग ये 2 केस वापस से पढ़ने वाले डिटेल्स में। ओके, जस्ट गो टू दिस पार्ट।